Hello children, welcome to Deyavati Modi Public School, Class 6th, Subject Science. Dear children, today we are going to know about Chapter 14, Water. We will study in this chapter the importance of water. How much water do we use in a day? Or we will know that what are different sources of water, from where do we get it, and how the clouds are formed, or how do we get rain, what are the reasons of scarcity of water, and how we should save or conserve water so that later on the coming generations should also get water in sufficient amount. So let's begin the chapter here. As we know, we use water for different purpose like bathing, washing, cleaning our utensils, or washing clothes, cleaning floor, and so many other purpose. But do you know how much water do you use in a day? Here is an activity to show or to understand this. You can note it down that how much water do you use in drinking, brushing, bathing, washing utensils, washing clothes, toilet, cleaning floor, any other purpose. And you can calculate here that how much water is consumed in a day. And from here, you can also calculate that the members of the family, how much water do they use in a day. And if you divide the amount of water that you have used by the member of family, then you can get the average amount. And then we can calculate that how much water is used by a family per year. So children, by this activity, you will know how much water is consumed. What are the different sources of water? From where do we get water? We all know that we get water from ponds, lakes, rivers, from hand pumps. These are different sources of water. But have you ever noticed that these different ways of getting water, like ponds, lakes, rivers and wells, इनमें पानी कहाँ से आता है? कहाँ से ये पानी इनके अंदर स्टोर होता है? हम जानते हैं कि हमें पानी इन सब सोर्सेस से मिलता है थ्रू द पाइप्स और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द वेल्स ऑल्सो. बट कौन इन सोर्सेस को फिल करता है? डू यू नो दिस? Well, do you know that about two-thirds, how much? Two-thirds of the earth is covered with water. Most of this water is in oceans and seas. But the water in the oceans and sea has many salts dissolved in it. So we cannot use this water because the water is saline. पानी कैसा होता है? खारा पानी होता है और इस वाटर को हम अपने डोमेस्टिक या फिर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं और not even for industrial needs. So this water is not fit for drinking or for many other purpose. So if we calculate that how much water do we get, it is about less than 1% fresh water. And in this 1%, the most of the water have been polluted. So there is a very little water. Now in oceans, play an important role in supplying the water that we use. जो पानी हमें मिलता है वो ओशियन भी उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सरप्राइजिंगली येस, बट हाउ? आपने चैप्टर पीछे पढ़ा था कि वी कैन सेपरेट सॉल्ट्स फ्रॉम वाटर. बट हाउ? by the method of evaporation. So this method of evaporation nature में अपने आप होता है and by this method salts remain and water gets evaporated. So let's know about how do we get this water from the ocean in the form of pure water, though the water of sea is saline. आपको मालूम है वाटर डिफरेंट सोर्सेस से इवेपरेट होता है. लाइक जो भी हम पानी
जो भी हम गीली चीज़ें बाहर सुखाते हैं, लाइक आर क्लोथ्स, आप जानते हैं कि जब हम क्लोथ्स धोते हैं तो उनको सुखाने के लिए कहाँ डालते हैं? सन में डालते हैं, लाइक दिस. सो व्हाट हैपन्स, क्योंकि पानी इनके अंदर है, क्लोथ्स के अंदर, सो ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, ये क्या होगा इस पानी का? दिस वाटर विल इवेपोरेट, और इवेपोरेशन के बाद में ये कहाँ जाएगा? इट विल गो इन द एटमॉस्फेयर, इन द एयर. सो इस तरह से पानी हमारे जो काम है, जो हम करते हैं, उसमें से इवेपोरेट हो जाता है. अगर कहीं पर फर्श पर पानी गिरा हुआ हो या कोई चीज़ गीली हो और उस पर अगर हम हवा चला दें, फ़ैन ऑन कर दें या उसे हम धूप में रख दें, तो पानी नेचुरली इवेपोरेट होकर के नेचर में जाएगा या एटमॉस्फेयर में जाएगा. इसी तरह से अगर हम नोटिस करें, ट्रीज़ भी वाटर को इवेपोरेट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 2, जिसमें आप समझ पाएंगे कि वाटर इवेपोरेशन जो होता है वो हमेशा होता है, एंड ये ज़रूरी नहीं है कि हम इवेपोरेशन के लिए पानी को धूप में ही रखें. इट इज़ ऑल्सो इवेपोरेटेड अंडर द शेड, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं. पानी को दो जगह पर रखा हुआ है, एक इन द सन डायरेक्टली हीट में, एक शेड में रखा हुआ है. तो जो पानी शेड में रखा हुआ है, इट विल ऑल्सो गेट इवेपोरेटेड बट एट द स्लोअर स्पीड और स्लोअर रेट. लेकिन जो पानी डायरेक्टली सन हीट में रखा हुआ है, इट विल इवेपोरेट फास्टर. ऐसा क्यों? जबकि सन शेड में नहीं है, क्योंकि सन हीट की वजह से जो हमारी एयर हीट हो जाती है, गर्म हो जाता है हमारा एटमॉस्फेयर, उसके हीट की वजह से the water gets evaporate. So evaporation is affected by different factors like heat or the temperature or wind speed and the surface area. तो surface area जितना होगा ज़्यादा, evaporation उतना ही ज़्यादा होगा. अगर temperature high है तो evaporation but naturally faster होगा, ज़्यादा होगा. And इसी तरीके से अगर विंड की स्पीड बहुत तेज़ है, हवाएं तेज़ चल रही हैं, तो ड्राई एयर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है एंड द वाटर गेट्स इवेपोरेटेड. सो द लॉस ऑफ वाटर थ्रू डिफरेंट सोर्सेस गेट्स कॉन्टिन्यूसली, ये कॉन्टिन्यूसली इवेपोरेशन का प्रोसेस चलता रहता है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ द क्लाउड्स आर फॉर्म्ड. जैसे कि अभी हमने समझा कि वाटर का इवेपोरेशन होता है, चाहे वो वाटर सी में हो, ओशन में हो, लेक में हो, पॉन्ड में हो, शेड में रखा हो, प्लांट्स हो, या हमने अपने कपड़े सुखाए हैं, सूखने के लिए बाहर डाले हों, सभी चीज़ों से वाटर का इवेपोरेशन होता है. तो ये वाटर इवेपोरेट होकर के जाता कहाँ है? इट गोज़ इन द नेचर, इट गोज़ इन द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में जब ये पानी जाता है, वाटर वेपर जाता है, तो ये वेपर्स एटमॉस्फेयर की लेयर में जा कर के कंडेंस हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है. तो ठंडी लेयर होने की वजह से ये वेपर्स कंडेंस हो जाती हैं एंड छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं. तो जब ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स पास आती हैं, इकट्ठी होती हैं, देन दे फॉर्म क्लाउड्स इन दिस फॉर्म. These tiny droplets get bigger and bigger and become heavier. तो जब ये heavy हो जाती हैं, they can't remain there and they fall down as in the form of rain. And this process is called as precipitation. Sometimes the raindrops enter into the area where the temperature is very low. So in that condition, that raindrop is converted into hail and drop as hailstones. Sometimes the tiny droplets do not drop down in the form of rainwater, but directly changes into snow because of the low temperature or very cold. So in this way we can see that the clouds are formed. To understand the process of condensation, we can see here an activity where you can see that the water droplets are collected on the outer surface of glass if the glass is filled with ice or cold water or any cold drink. So why does this happen? Because the water
in the glass is cold, and in the outer atmosphere, जो हमारे बाहर का एटमॉस्फेयर है ग्लास के बाहर का, इट हैज़ वेपर, और ये वेपर्स जब इस ग्लास कोल्ड ग्लास के कांटेक्ट में आती हैं, देन दीज वेपर्स आर कंडेंस. ये क्या हो जाती हैं? दीज आर कंडेंस. और कंडेंस होने के बाद में ये क्या हो जाती हैं? दीज आर कन्वर्टेड इनटू लिटिल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, एंड ये इनके ऊपर कलेक्ट हो जाती हैं, एंड दैट्स वाई वी कैन सी दैट स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर on the surface of the glass. So in this way the water changes into vapor, and the vapors changes into clouds. So in the formation of clouds, there involves two process: first evaporation, and after evaporation condensation. So in the formation of rain, evaporation and condensation plays very important role. And this rainwater, when this rain falls down, तो ये वापस कहाँ जाता है? They fall down in the ocean, river, ponds, lakes. तो back to उसी sources में ये उन्हीं sources में वापस आ जाता है. And in this way, this circulation of water from land to atmosphere in the air, and from air to ocean continuously circulates, and this circulation of water in the nature is called as water cycle. What it is called as? Water cycle. So in this way the water cycle is continued every time. If there is no water cycle, then there will be no water in the sources of water that we see: ocean, river, pond, lake, etc. Now what is this groundwater? ग्राउंड वाटर हम किसे कहेंगे? एक्चुअली जो पानी हमें डिफरेंट सोर्सेस में मिलता है, दैट थ्रू द रेन इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल एज टू अस एज ग्राउंड वाटर. जो ओपन वेल्स होते हैं ये ग्राउंड में होते हैं, क्योंकि तो ग्राउंड वाटर कैसे हमें अवेलेबल होता है? विच इज़ द सोर्सेस ऑफ मैनी लेक्स एंड वेल. इट इज़ ऑल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज़ ड्रॉन बाय हैंड पम्प. यही पानी हम हैंड पंप में भी यूज़ करते हैं, या फिर ट्यूबवेल में. द मोर हैंड पम्प्स ऑफ ट्यूबवेल्स दैट आर यूज्ड इन एन एरिया, द डीपर वी नीड टू डिग to find this groundwater. The loss in the level of groundwater is due to overuse, and it is need to be worried. लेकिन ये groundwater आया कहाँ से? जो पानी रेन का हमें मिलता है, it is absorbed by the soil, and soil के different लेयर से होता हुआ ये नीचे rocks में absorb हो जाता है, and this is the groundwater that we get from through the hand pumps or wells. लेकिन कॉन्टिन्यूसली जब हम इस पानी को ग्राउंड वाटर को यूज़ करते हैं, इट गेट्स डिप्लीटेड, कम होता जाता है, और इसे फिल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. अदरवाइज जो हमारी ग्राउंड वाटर है, इट विल बी कम्प्लीटली फिनिश्ड, एंड वी विल नॉट बी एबल टू हैव दैट ग्राउंड वाटर इन थ्रू द हैंड पम्प और वेल्स, एंड द सॉइल विल बी कम्प्लीटली ड्राइड. सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा ये ग्राउंड वाटर जो है कॉन्टिन्यूसली सॉइल में हमें मिलता रहे. लेकिन ये कैसे होगा? इसके लिए हमें वाटर प्रॉपरली सॉइल में जाए, एब्जॉर्ब हो, उसका ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़े, इसके लिए हमें कुछ मेथड्स अप्लाई करने होंगे. नाउ सी व्हाट इफ इट रेन्स हैवी. अगर ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो तो क्या होगा? उस कंडीशन में हम क्या करें, या उसे क्या कहेंगे? एक्चुअली जो पानी जब बरसात होती है या रेनी सीज़न होता है, तो हम देखते हैं कि बारिश का पानी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो करने लगता है, और जब ये एक्सेस वाटर होता है, एक्सेस वाटर आउट ऑफ द बाउंड्रीज हो जाते हैं या इनका लेवल बहुत बढ़ जाता है, देन दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड एज फ्लड. एंड ड्यू टू दिस फ्लड many lives are finished, like small animals या plants जो छोटे छोटे होते हैं, even then they are
completely died. So excess rainfall, it is also not good for the nature, क्योंकि इसमें लाइफ्स जाती हैं. Now what if it doesn't rain, और पानी अगर कम हो जाए, तो in that condition also we see that for a longer period, अगर बारिश ना हो तो the soil gets dry. सॉइल कैसी हो जाती है? ड्राई हो जाती है. पानी की कमी की वजह से हर जगह सूखा पड़ने लगता है, और इसी कंडीशन को हम ड्राउट कहते हैं. लेकिन ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ इवेपरेशन. जब ज़रूर ज़्यादा इवेपरेशन होने लगे, कंटिन्यूसली सॉइल से पानी इवेपरेट होता रहे और पानी को फिल करने के लिए सॉइल में कोई सोर्सेस ना बचे, तो उस कंडीशन में सॉइल ड्राई हो जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड एज ड्राउट. सो हाउ कैन वी ओवरकम दिस प्रॉब्लम? इस प्रॉब्लम से हम कैसे बच सकते हैं? इसके लिए ज़रूरी है कि हम वाटर को कंजर्व करें. What is this water conservation? Water conservation means to conserve water for later use. So what are these methods? कि हम क्या ऐसा करें कि जो हमारी अर्थ है उसमें टोटल अमाउंट ऑफ वाटर बना रहे, सेम बना रहे, लेकिन सभी के लिए वो अवेलेबल भी हो, एंड जो वाटर हम यूज़ कर रहे हैं उस ग्राउंड से वो दोबारा से उसमें फिल हो सके. सो दिस इज़ द डिमांड for water is increasing day by day. The number of people using water is increasing with rising population in many cities. Because आप जानते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है, सिटीज़ बनते जा रही हैं, डिफरेंट तरह की डिमांड्स क्रिएट हो रही हैं. सो उस पर्पस के लिए जब हमें वाटर की यूसेज करना होता है, हम बिना सोचे समझे एक्सेस अमाउंट में वाटर को यूज़ करते हैं एंड वेस्ट करते हैं, विच इज़ नॉट गुड साइन. और ये सब स्कैरसिटी के रीज़न है. सो व्हाट वी शुड डू? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट वी शुड यूज़ ओनली द लिमिटेड वाटर. द अमाउंट ऑफ वाटर दैट वी नीड, ओनली दैट मच वी शुड यूज़. उतना ही पानी हमें यूज़ करना चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत होती है. जब हम अपने काम कर रहे होते हैं, जैसे कि ब्रशिंग या क्लीनिंग का, तो ब्रशिंग करते समय हमें पानी के टैप को कभी भी खुला नहीं छोड़ना है. अगर कहीं पर लीकेज है टैप्स में, उसको हम ठीक करवाएं. क्लीनिंग का अगर हमें काम करना है, जैसे हमें अपनी गाड़ियाँ धोनी हैं या हमें फ्लोर को क्लीन करना है, तो उसके लिए हम वॉशिंग ना करें, उसके लिए हम केवल मॉपिंग करें या अपनी गाड़ियों को गीले कपड़े से वाइप कर दें. इन दिस वे ऑल्सो वी कैन save water. And very much important, rainwater harvesting. What is this rainwater harvesting? Rainwater harvesting means अगर हम बारिश के पानी को, if we use rainwater, then it becomes a method to use or to save water. So how we can do this? We can do this by collecting the rainwater. अगर हम पानी को कलेक्ट करें, ओके, पानी को कलेक्ट हम कैसे करेंगे? रूफ टॉप मेथड से. What is this रूफ टॉप मेथड? रूफ टॉप मेथड मीन्स अपनी रूफ पर, घर की रूफ पर रेन वाटर को हम कलेक्ट करें, एंड द कनेक्शन थ्रू अ पाइप, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, ये पाइप है, इस पाइप का कनेक्शन हम इस वाटर टैंक से कर दें, एंड दिस वाटर टैंक इज़ कनेक्टेड टू द ग्राउंड और द सॉइल. सो जो रूफ पर पानी इकट्ठा होगा बारिश का, इट विल कम इन दिस पाइप, एंड थ्रू दिस पाइप इट विल गो इनटू द टैंक, और टैंक से हम वाटर के उस रेन वाटर को यूज़ कर सकते हैं फॉर क्लीनिंग पर्पस, फॉर प्लांटिंग. इस तरह से हम उसको रेन वाटर को सेव कर सकते हैं या कलेक्ट कर सकते हैं, एंड फिर हम उस रेन वाटर को ग्राउंड तक भी पहुंचा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, जो धीरे धीरे उस सॉइल के अंदर सीप होना शुरू कर देगा. सीपेज होगा यानी एब्जॉर्ब हो जाएगा
and in this way the ground will be refilled. फिर से वो refill हो जाएगा. जो दूसरा method है, another option is to allow water to go into the ground directly from the roadside drains that collect rainwater. दूसरा मेथड क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? जो रेन वाटर हम ओपन में देखते हैं वेस्ट होते हुए, उसको हम ग्राउंड में डायरेक्टली एब्जॉर्ब करा सकते हैं इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग इट. सो इन दिस वे वी कैन कलेक्ट रेन वाटर एंड रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म एज यू नो. तो उसको हम if we collect it for later use, so this method is called as rainwater harvesting. So what is rainwater harvesting? Rainwater harvesting means collecting rainwater for later use. And why it should be done? To save the water for the coming generation. So that's all, children, in this chapter. Thank you for listening.